Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, in morning video, I have given you distinction between academic and competitive examination. Now, in competitive examination, a person who has acquired better knowledge or who is better equipped will win. But how to acquire this? How to become a candidate who is ahead of others? For that, you must have good tools with you. Good tools means your selection of study material should be different than common candidates. Should be of a quality which gives you insight, which gives you edge over others. Based on my vast experience, I have identified 3 weapons for clear success, and thousands of our subscribers tried it. They are ahead of it, and they got jobs most of the times. Now, what are these tools? One is a diagnostic test that helps you to identify your weakness and give you direction to improvement, and that is called mock test. So I have identified a good quality mock test for you. I am sharing link of that mock test every time in every video. You can subscribe it and take advantage of it. How to take advantage of it? To take advantage of it, you will attempt this mock test, look at your attempts and jot down those topics where you have not able to attempt or where you are not able to answer correctly. These are called weak areas. If a person is able to understand or identify his or her weaknesses, it becomes smoother, easier for the person to improve. But if we go on reading without planning, we will not reach anywhere. So key to success is planning and execution, which most people lack. They go on studying, they are doing hard work, but there is no planning. So that is the distinction between hard work and smart work. Smart work means a well thought of planning and then its execution. So planning is selection of a good mock test, subscribing it, using it, identify our weaknesses and remove weakness on daily basis. So if you are able to improve 1 or 2 marks daily, by the end of month, you might have improved on an average 10 marks. And if you are going through this process continuously for 6 months, you may even improve 20 to 30 marks. Because as you will move ahead, the number of marks added may not be at the same speed which will be earlier, because earlier you are having lot many areas of weakness. Gradually these number of weaknesses are reducing, so that even improvement will also be slower as you move forward. But every mark improved takes you towards a step towards success. So take the mock test suggested by me. It is going to help you tremendously. Second, acquiring knowledge in areas where other people are weak. And what is that? Current affairs. So some people use newspapers, some people watch videos, some people do something else. They may be good source, but they are time consuming. So we should have a source which is less time consuming but giving me more knowledge. In my eyes, the good PDF on current affair is the source which optimizes your time versus knowledge acquisition. Some people may say that I am reading newspaper, I am acquiring knowledge. Fine. But at what cost? You are spending a lot of time. Because you are reading good news also and the news that is not to be read. You are wasting your time. Similarly, in certain videos I have observed, they are giving information, but they are
adding unnecessary content also in that video for their own advantage. So it drains away the time of the candidate, and that's why normally I don't recommend any video session for acquiring the knowledge. Only I recommend video session where understanding is to be done, like banking awareness. If you will read, you will not understand the concept. For conceptual clarity, you need someone who can advise you. Similarly, you can watch those videos where skills are being developed, where you understand some methodology. It can be useful. But if you have to solve a question, you solve from the text. That is always better. It saves your time. So how to save time, how to optimize time, you should have that mode of medium for your preparation that will help you. And that's why I recommend PDF for current affairs. So that PDF link is available in description and comment box. Subscribe it and take advantage of it. Third is improving language, that is English. The English plays very vital role in selection. Many people ignore this subject. They start living with the level of English they are having, but they don't make any sincere efforts to improve the language, and any improvement in language brings you excellent result. Because here improvement can be of good number of marks. And for that I recommend you should daily read a good quality grammar book. Because grammar is mother of language. And I prefer a school level book, Wren and Martin, W-R-E-N and M-A-R-T-I-N. Very easily you can have free PDF on Google search. No cost. Even if you talk to any kid, they may be having this school level book, you can have second hand also. It is easy to acquire. So if you work on these three skills, one, use of good mock test to identify weakness and improve. Second, good quality current affair source. Third, improving English. And then if you want to go to banking field, you must have good knowledge of banking. And for that I have given you free of cost banking videos, 190 videos. That is going to help you. People, those are following this path. People, those are using this path. They are watching me. Yes, sir, I have achieved the improvement. You can also try. Thousands of our subscribers have already tried. They are having advantage over others. If you will now go through the exam, after doing all these things, you will be feeling better. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आज मैंने एक वीडियो डाली जिसमें मैंने आपको समझाया एकेडमिक एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या डिफरेंस है. अब मन में प्रश्न ये आता है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहा हूं, दूसरों से बेहतर नॉलेज कैसे ला सकता हूं. जैसा सब कर रहे हैं, यदि वैसे ही मैं कर रहा हूं तो मेरी नॉलेज उनसे बेहतर नहीं हो सकती. मेरी नॉलेज कब बेहतर होगी? जब वो मैं चीजें कर रहा हूं जो और लोग नहीं कर रहे. वो मैं रास्ता अपना रहा हूं जो बहुत कम लोग अपना रहे हैं. अधिकांश हम क्या करते हैं, हम वो रास्ता अपनाते हैं जो अधिकांश लोग अपना रहे हैं, और फिर हमारा भी स्कोर वही होता है जो अधिकांश लोगों का है. जबकि कंपटीशन में आना है हमें फ्यू में, मेजोरिटी में नहीं आना. यही एक ऐसा क्षेत्र है जहां मेजोरिटी में आने में नुकसान है. मेजोरिटी है अनसक्सेसफुल की, माइनॉरिटी है सक्सेसफुल की. यहां आपको प्रयास करना है माइनॉरिटी में आने की. जैसे म्यूजिकल चेयर में क्या होता है कि हर राउंड में एक चेयर कम होती जाती है और हमें आखिर तक बचे रहना है, और जीतता कौन है? जो आखिरी कुर्सी पे बैठता है. इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी जो आपके आसपास के लोग हैं वो वीड आउट होते जाएंगे. वो हर चरण में अलग होते जाएंगे, हारते जाएंगे. जीतेगा कौन? जो आखिर तक बचेगा. आखिर तक कौन बचेगा? जिसके पास नॉलेज है, जिसने उन सोर्सेज से तैयारी की है जो डिफरेंट है.
वो नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। तो 3 मैंने आपको स्किल एक्वायर करने के तरीके समझाए हैं अपने वीडियोस में। पहला है अच्छा मॉक टेस्ट। कुछ लोग मॉक टेस्ट समझते हैं मेरे नंबर इतने आ गए। नो, मॉक टेस्ट का मकसद नंबर लाना नहीं है। मॉक टेस्ट का मकसद कट ऑफ पास करना भी नहीं है। मॉक टेस्ट है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक मीन्स जो मुझे आईना दिखाए, जो मेरी कमियां उजागर करे और मैं उन कमियों को दूर कर सकूं। तो मुझे क्या करना है? प्लान करना है, प्लान करके एग्जीक्यूट करना है। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है? कुछ भी करते रहना हार्ड वर्क है, पर प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना स्मार्ट वर्क है। क्योंकि अगर मैं प्लानिंग करूंगा फिर एग्जीक्यूशन करूंगा तो मेरा बेहतर रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट ले लीजिए, जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया। उसके बाद आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करिए। अब कुछ क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ गलत हो जाएंगे। जो नहीं कर पाए, जो गलत हो गए, ये आपकी कमजोरी है, वीकनेस है। इसको स्पॉट करिए, इसको नोट डाउन करिए डायरी में, और नोट डाउन करने के बाद उसकी थ्योरी पढ़िए। अगर एक दिन में आपने 1 या 2 स्किल भी एक्वायर कर ली तो 1 महीने में 30 स्किल एक्वायर हो गई। तो यदि आपके रोज 2 नंबर इंप्रूव हो रहे हैं तो हो सकता है 1 महीने में 10 नंबर इंप्रूव हो जाए। 60 नहीं होंगे, 30 गुना नहीं होंगे, क्योंकि कई रिपीटेटिव नंबर होंगे। इसी तरीके से अगर हम 3 महीने में देखेंगे तो ये 60 नंबर नहीं इंप्रूव होंगे, हो सकता है 25 नंबर इंप्रूव हो जाए। पर कंपटीशन तो लोग 1, 2, 3 नंबर से हारते हैं। तो अगर मैं अच्छा मॉक टेस्ट इस्तेमाल करता हूं, वहां से अपनी कमियां ढूंढता हूं और अपनी पढ़ाई केंद्रित करता हूं इन्हीं क्षेत्रों में, तो मेरा रिजल्ट बेटर आएगा। हजारों लोगों ने इसको आजमाया है, सक्सेस भी पाई है। दूसरी चीज है टाइम का मैं ऑप्टिमाइजेशन कैसे करता हूं। क्वेश्चन ये नहीं होता कि कौन सा सोर्स अच्छा है बुरा है, कौन सा सोर्स अच्छा भी है और ऑप्टिमाइज भी है। मान लीजिए मैं अखबार पढ़ रहा हूं, बहुत अधिक टाइम उसमें व्यतीत होगा। कुछ खबरें काम की पढ़ पाऊंगा, कुछ बेकाम की पढ़ पाऊंगा। पढ़ तो मैंने लिया, नॉलेज भी एक्वायर कर ली, बट वक्त बहुत लग गया। कोई वीडियो सेशन में देखूंगा, उसमें कई बातें काम की होंगी, कई बेकार होंगी, मेरा बहुत टाइम लग गया। पर यदि मैंने पीडीएफ से पढ़ा तो कम टाइम में अधिक इंफॉर्मेशन मैं एस्टिमेट करने में कामयाब हो जाऊंगा, एक्वायर करने में कामयाब हो जाऊंगा, समझने में कामयाब हो जाऊंगा। मैंने टाइम का सदुपयोग कर लिया। और इसीलिए मैं आपको पीडीएफ रिकमेंड करता हूं करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि वहां कुछ समझना नहीं है, वहां सिर्फ एक चीज को पढ़ना है और याद करना है। उसके लिए कोई मुझे पढ़ाने वाला नहीं चाहिए। पढ़ाने वाला मुझे कहां चाहिए? जहां मुझे कंसेप्ट समझने हैं, जहां मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। जैसे बैंकिंग है, मैं पढ़ूंगा मुझे नहीं समझ आएगा, मगर कोई मुझे समझा देगा तो मुझे समझ आ जाएगा। वहां मैं आपको वीडियो सेशंस रिकमेंड करता हूं, जहां मैंने आपको वीडियो सेशन फ्री के बना के दे दिए 190। तो ये हमें डिस्टिंक्शन करना है कि कहां पर कौन सा मीडिया यूज करना है। कई लोग सवाल सॉल्व करने के लिए वीडियो सेशन यूज कर रहे हैं, उसमें आपको कोई फायदा नहीं है। सवाल तो आप घर बैठ के टेक्स्ट बुक से कर लीजिए, पर उसको टेक्निक क्या है। अगर कोई व्यक्ति मुझे टेक्निक समझा रहा है और टेक्निक मैंने एक्वायर करनी है, वहां स्किल एक्वायराइजेशन के अंदर ऑडियो वीडियो इज ए बेटर ऑप्शन देन सिंपली हम उसको पढ़ रहे हैं। ऑडियो वीडियो इफेक्टिव चैनल तब बनता है जब हमें कुछ चीजें सीखनी है, और अगर कुछ प्रैक्टिस करनी है तो केवल अगर हम टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं तो हम आगे निकल सकते हैं। फिर तीसरी मेरी बात यह है कि आपको अगर आप इंग्लिश में मास्टरी कर लेते हैं, इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेते हैं, ये आपको बहुत अच्छे नंबर दिलाता है सब्जेक्ट, जहां से आप कंपटीशन पास कर सकते हैं। अधिकांश लोग हेजिटेंट होते हैं कि इंग्लिश इंप्रूव ही नहीं करनी, जितनी है उसी लेवल पे जाएंगे हम। और ये ऐसा एरिया होता है जो आपको कंपटीशन में एज दिला सकता है। अच्छी ग्रामर बुक पढ़िए रोज, बहुत आसान है, वहां से आप सीख जाएंगे। रन एंड मार्टिन की मैं बुक रिकमेंड करता हूँ नॉर्मली, WREN and MARTN।
ये बहुत ही अच्छी स्कूल लेवल की ग्रामर की किताब है, स्कूलों में लगी हुई है, और गूगल सर्च से आप फ्री PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। आसपास के बच्चों से भी आपको ये किताब मिल जाएगी, और बुक सेलर से सेकंड हैंड भी मिल जाती है आसानी से। तो ये करिए, बेसिक्स को इम्प्रूव करिए, अच्छा मॉक टेस्ट यूज करिए, अच्छा PDF यूज करिए करंट अफेयर का, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इस एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आए हैं इसमें से। फिर बैंकिंग कैसे सीखनी है, मेरी वीडियोस देख लीजिए। इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, किताब मैंने आपको बता दी। और फिर देखिए, आप लोगों से आगे निकल चुके हैं। एग्जाम को क्रिटिसाइज करने में, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने में आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। लोगों को करने दीजिए, आप अपनी नॉलेज एक्वायर करिए। आपको औरों से अलग बनना है, आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अधिकांश लोग क्या होता है, सोशल मीडिया पे जाके भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। इतना टाइम वो वेस्ट करते रहते हैं, तरह तरह के कैंपेन चलाते रहते हैं। उनको लगता है कैंपेन चलाने से हम विनर हो जाएंगे। कभी विनर नहीं होंगे। सबको थोड़ा नौकरी मिलनी है, मिलनी ही कुछ लोगों को। तो कुछ कैसे बने ये सोचना है हमें। एक बहुत बड़ा माहौल पैदा करने से नहीं मैं विनर होऊंगा, अपने अंदर कैसे इंप्रूवमेंट करूंगा उससे विनर होऊंगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।